The following data is related to 8.5%. Highlight the portion fully convertible into equity shares debentures issued by JAC Limited at the rate of rupees 1000. Market price of the debenture is 900. Conversion ratio is 30. स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, जिसको फ्लोर वैल्यू भी बोला जाता है, यानी अगर कन्वर्जन का फीचर हटा दिया जाए तो प्राइस क्या होगा, दैट इज 700. मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन यानी P0 दे रखा है. एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज गिवन, दैट इज D1 इज प्रोवाइडेड टू अस. यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर and so on. The questions are there. I request all of you to go through the question, please. So here the first question is conversion value of the debenture. I request all of you to write an answer along with me. Conversion value of debenture. उसमें क्या किया जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो. Market price of the equity share is provided to us in the question as rupees 25. Conversion ratio is 30. So this is rupees 750. That is the conversion value of the debenture. Second part of the question, that is B question. Market conversion price, जिसको कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर जब कन्वर्जन वैल्यू 0 हो जाए. So answer for the B part of the question. In that, market conversion price, or it is given a name as conversion parity price of the stock. In that, conversion premium is equal to market price of debenture minus conversion value. कन्वर्शन प्रीमियम कितना होना चाहिए, 0. मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर कितना दे रखा है, इट इज 900. माइनस कन्वर्जन वैल्यू क्या होगा, इट इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं. सो इट इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो जो हमको 30 दे रखा है इज इक्वल टू 900. सो दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर जब कन्वर्जन प्रीमियम 0 हो जाएगा, और उसको बोला जाएगा मार्केट कन्वर्जन प्राइस या तो फिर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक, दैट इज 900 डिवाइड बाय 30. यानी ये जो मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर है तब कन्वर्जन प्रीमियम 0 हो जाएगा. That is what we understand. Next question, conversion premium per share. So C question. Conversion premium
per share. That will be calculated as conversion premium divided by conversion ratio. What is conversion premium? We understand that so the conversion premium is market price of debenture minus conversion value divided by conversion ratio, that is 30. So it is 900 minus conversion value हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, 750 है, डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा 30. So we understand that say 900 minus 750, that comes to 150 divided by 30, that comes to 5. 150 divided by 30, that comes to 5 rupees per share. And again we can have a reconciliation कि कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक कितना है 30 और अभी का मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कितना 25, तो उसी का डिफरेंस क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट्स द कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द कन्वर्जन प्रीमियम और कन्वर्जन प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म, दैट इज अ क्वेश्चन. सो डी क्वेश्चन, ratio of conversion premium or it is given a name as conversion premium in percentage term. Dear students, it will be calculated as market price of the debenture divided by conversion ratio, so conversion value minus 1. Market price of the debenture is 900, conversion value is 750. जो भी आंसर है उसमें से एक डिडक्ट किया जाएगा. So it is 900 upon 750. So it is 1.20 minus 1.20, that is 20%. Premium over straight value of the debenture. So E question, premium over straight value of debenture. यानी कि स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर की कंपैरिजन में ये डिबेंचर का वैल्यू कितना ज्यादा है. So it is market price of the debenture divided by straight value of debenture whole minus 1. तो ये हमको प्रीमियम मिल जाएगा. So over here we understand it is 900 divided by 700, जो भी आंसर है minus 1.
So it is 1.2857 minus what? 0.2857, that is 28.57%. Next question. Favorable income differential per share. This is an important question. Friends, over here I would like to tell you that say जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं उसको वो लोग कैसे पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड ओवर हियर इंपॉर्टेंटली। जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं वो उनको कैसे पूछ सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे समझा। एंड से द एफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज से वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। इसमें हमको क्या पूछा वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है, व्हाट इज द फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। देखो अभी एकदम गौर से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। देखो 1,000 रुपए का फेस वैल्यू है सिक्योरिटी का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%। तो अगर एक इन्वेस्टर डिबेंचर बाय करता है तो 1,000 इंटू 8.5%, उसको ब्याज कितना मिलेगा? उसको ब्याज मिलेगा 85 का। अच्छा, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग वन डिबेंचर, अगर वो 30 इक्विटी शेयर्स खरीदता है, सर 30 क्यों? क्योंकि कन्वर्जन रेशियो 30 है। अगर वो 30 इक्विटी शेयर्स खरीदेगा तो उसको डिविडेंड इनकम क्या मिलेगा? 1 रुपी पर शेयर। नहीं देखो 1 इंटू 30, उनको 30 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। सो परचेसिंग वन डिबेंचर इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 30 इक्विटी शेयर्स, उसमें उनको फायदा कितना होगा? 85 रुपीज उनको, सॉरी 55 रुपीज उनको ज्यादा मिलेगा। दिस 55 रुपीज जो उनको ज्यादा मिलेगा डिवाइडेड बाय 30, क्यों? क्योंकि कन्वर्जन रेशियो 30 है। So this is indicating the premium, I'm sorry, favorable income differential per share, यानी कि डिबेंचर खरीदने की वजह से कितना फायदा हुआ इन कंपैरिजन टू परचेसिंग ऑफ द 30 इक्विटी शेयर्स, ऐसा हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर एफ, favorable income differential per share in the write down interest income minus dividend divided by conversion ratio। So it is 1000 into 8.5% minus 1 into 30 whole divided by 30। देखो 8.5% का ब्याज है तो हमको क्या 85 इनकम मिलता है। अगर हमने ये डिबेंचर खरीदने की जगह 30 इक्विटी शेयर्स खरीदे होते तो हमको $30 का इनकम मिलता। यानी फॉर परचेसिंग ऑफ द डिबेंचर वी हैव एक्सेस इनकम ऑफ 55 डिवाइड बाय 30, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो 30 है। सो व्हाट इज द फेवरेबल इनकम पर शेयर? इट इज 1.83 रुपीज पर शेयर। चलो रेड ऑन आंसर। Read on a small note for the last answer. We understand that if
one convertible debenture will give interest income of rupees 85. Full stop. It is higher than dividend income of 30 equity shares. Full stop. ब्रैकेट में लिखो 30 इक्विटी शेयर्स इज कन्वर्जन रेशियो. ब्रैकेट ओवर. फुल स्टॉप. This higher income is converted on per share basis. Full stop. I want you to give answer for the G question. What is the premium payback period? Again, slightly a new question, but just I want to see whether you can do it or not. Premium payback period. Now question में ऐसा दे रखा है, let's say what is the premium payback period. तो उसको कैसे समझेंगे? Let us understand that. See, we have to understand it like this. It is similar to something like called the payback period. देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे. देखो अगर मैं एक डिबेंचर बाय करता हूं और अगर मैं 30 इक्विटी शेयर्स बाय करता हूं, उन दोनों में फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं. एक डिबेंचर खरीदेंगे तो उसका प्राइस कितना होगा? 900. और 30 इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे उसका प्राइस क्या होगा? 750. यानी परचेसिंग ऑफ वन डिबेंचर instead of purchasing 30 equity shares, in that we understand we are required to make the payment of the premium. What is the amount of the premium to be paid? It is 900 minus 750, that is 150. यानी 150 रुपीज का हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा. अच्छा, इनकम यहां पे कितना मिलेगा? 85. यहां पे कितना मिलता है? 30. 85 कैसे? 1000 इंटू 85%. और यहां पे 30 कैसे? 1 इंटू 30 शेयर्स. यानी हायर इनकम कितना मिला? हायर इनकम मिला 55. तो देखो एक साल में मैंने 55 रिकवर किया, दूसरे साल में और 55. सो लाइक दैट वी अंडरस्टैंड ईयर 1 differential income is 55, so cumulative it is 55. Year 2 differential income is 55, so that is cumulative it is 110. Third year में again 55, so cumulative it is 165. तो देखो by end of third year मेरा 150 रुपए जो एक्सेस पे किया था वो रिकवर हो गया. What is the time period in which I am able to recover the premium? We can say that it is more than 2 years and less than 3 years. तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं. इट इज 2 years प्लस 150 माइनस 110, यानी कितना हुआ? 40 रहा.
40 divided by what? 55. So we understand that say over here it is 150 minus 110, यानी 40 रुपए हमको रिकवर करने के बाकी है, divided by 55. So what happens? That is 2.73 years. So that is what's the way you can calculate the premium payback period. ये बहुत ही डिटेल वर्किंग है, इसको हम लोग कुछ शॉर्ट ऐसा कर सकते हैं. If at all you want to do it, market price of debenture minus market value of 30 shares, any a kind of premium that you compute, divided by income differential. So market price of the debenture is 900. Market value of 30 equity shares are 25 into 30. Divided by income differential is 55. So over here it is 900 minus 750 divided by 55. So it is 150 upon 55. That comes to 2.73 years. That is the way we make the calculation. Please write an answer. Chalo, write down a note for the answer. Premium payback period means time period in which extra income recovers premium paid to buy debenture. Full stop. Let us have summary of the entire answer. First question है conversion value of the debenture. So it is market price of the equity share into conversion ratio 750. दूसरा क्वेश्चन है मार्केट कन्वर्जन प्राइस. ये और कुछ नहीं है बट इट इज अ कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक, यानी कि सच मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर कि जब मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर एंड कन्वर्जन वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि तब कन्वर्जन प्रीमियम 0 हो जाए. सो वी हैव मेड द कैलकुलेशन, इट इज 30 रुपीज पर शेयर. कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, that we understand it is a conversion premium divided by number, that is conversion ratio. Conversion premium कितना है 150 divided by conversion ratio is 30, that comes to 5 rupees per share. या तो फिर हमने जो ऊपर का कैलकुलेशन किया है 30 माइनस करंट प्राइस 25. रेशियो ऑफ द कन्वर्जन प्रीमियम, इसका मतलब ये है कि आपको कन्वर्जन प्रीमियम वापस फाइंड करने का है से इन परसेंटेज टर्म. सो वी अंडरस्टैंड इट इज वंस अगेन वेरी सिंपल. It is 900 divided by 750 minus 1, that comes to 20%. यानी एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कन्वर्जन वैल्यू. फिर पूछा है प्रीमियम ओवर द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर. स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर को फ्लोर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर भी कहा जाता है. दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर माइनस 1. इट इज 28.57%. फिर पूछा है व्हाट इज द फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर. दैट इज अ क्वेश्चन. वी अंडरस्टैंड इट इज द इंटरेस्ट इनकम माइनस डिविडेंड इनकम, यानी एक्स्ट्रा कितना मिलेगा आपको 55 अगर आपने एक डिबेंचर बाय किया तो. इट इज अगेंस्ट द 30 शेयर्स. सो वी अंडरस्टैंड द फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर इज 1 रुपी 83 पैसे पर शेयर. सो आई हैव डिक्टेटेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम टू यू. जी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. एफ एंड जी बोथ आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. जिसपे ये पूछा है से जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो टू परचेज द डिबेंचर, ये प्रीमियम डिबेंचर बाय करने के लिए,
वो प्रीमियम कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट्स अ परचेसिंग ऑफ वन डिबेंचर इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 30 इक्विटी शेयर्स, आपको 55 रुपीज का ज्यादा इनकम मिलता है. इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.73 years से टू रिकवर द प्रीमियम. आप इस हिसाब से भी उसका कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि रिकरिंग कैश फ्लो सेम होगा. आंसर इज 2.73 years. So the premium payback period means time period in which extra income recovers premium paid to buy the debenture.